السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے شروع کریں بسم اللہ کر کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پوری آیت پر بنسا کہ پوری آیت ہی ہے. بس ایک آیت ہے اس کے بعد تفسیر پڑھیے. ایک آیت پڑھ لینا اس کے بعد تفسیر پڑھیے. المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم ويدخل من فيوجد بدليل خارجي وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون أو تغليب الموجودين على من لم يوجد الذكور على الإناث في قوله اتقوا ربكم لاختصاص ذلك بجمع المذكر والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم. یا ایھا الناس اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا اور اس سے ان دونوں سے بہت سارے لوگوں کو پھیلایا، یعنی کہ مردوں کو، بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو، اور اس اللہ رب العالمین جس سے تم رشتہ داری طلب کرتے. واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا ربکم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. اتقوا ربکم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. وخلق منها زوجها اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورتوں کو پھیلایا ہے. وبث پھیلا دیا منہما ان دونوں سے رجالا كثيرا ونساء بہت سے مرد اور عورتوں کو. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. والارحام اور قطع رحم سے بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے یا تمہاری نگرانی کرنے والا ہے یا تم پر نگہبان ہے. تفسیر یہ حاشیے سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں اصل تفسیر ہے لیکن اختصار ہے. کہیں کہیں کچھ چیزیں آپ کو حذف ملیں گی. یہ چونکہ مختصر وقت ہے اس وجہ سے ایک تیار کیا گیا ہے تاکہ کچھ زیادہ پڑھائی ہو. تو سب سے پہلے صاحب تفسیر شوکانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس میں ناس سے مراد کون ہے؟ یا ایھا الناس، ناس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں المراد من ناس کہ ناس سے مراد الموجودون عند الخطاب من بنی آدم. خطاب کے وقت یعنی جب خطاب کیا گیا یا ایھا الناس، بنی آدم کے جو لوگ موجود تھے وہ لوگ مراد ہیں. الموجودون مراد موجود لوگ عند الخطاب لیکن عبارت یہی ہے کہ بنی آدم کے جو لوگ موجود تھے خطاب کے وقت وہ مراد ہیں. اس کے بعد سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جو لوگ موجود نہیں جو خطاب کیا جاتا ہے الناس سے، جو لوگ موجود نہیں ہیں اس کو کیسے خطاب کریں گے؟ آگے کہتے ہیں کہ وَيَدْخُلُ مَنْ سَيُوجَدُ اور داخل ہوں گے اس خطاب کے اندر، اس کتاب میں من وہ لوگ بھی سیوجد جو بعد میں آئیں گے، جو پائے جائیں گے وہ بھی اس کتاب کے اندر داخل ہوں گے. لیکن دلیل سے کیا یا ایھا الناس کے ذریعے سے یا کوئی دوسری دلیل سے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں بدلیل خارجی دلیل سے. یا ایھا الناس سے نہیں، یا ایھا الناس سے جو لوگ موجود تھے وہ لوگ مراد ہیں. بقیہ خارجی دلیل سے جو آنے والے ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ لوگ بھی داخل ہوں گے. اور خارجی دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ
على انهم مكلفون بما كلف به الموجودون. اجماع ہے بات پر، امت کے اجماع پر کہ وہ لوگ مکلف ہوں گے بما اس چیز کا کلف به الموجودون جس چیز کا موجود لوگ مکلف بنائے گئے ہیں. موجودین جس بات کے مکلف ہیں اس کے مکلف آنے والے لوگ بھی ہوں گے. یہ اس پر اجماع ہے امت کا، جس کی بنا پر یا ایھا الناس کے اندر داخل ہیں. یا دوسرا جواب دیتے ہیں او تغلیب الموجودین، یہاں موجودین کو غلبہ دے دیا گیا ہے. علی من لم یوجد، جو لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، جو لوگ موجود نہیں ہیں، ان پر موجود لوگوں کو غلبہ دے دیا گیا ہے. یا ایھا الناس سے مراد سب لوگ ہیں، یا ایھا الناس مراد سب لوگ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں جو موجود تھے انہیں غلبہ دے دیا گیا ہے ان لوگوں پر جو موجود نہیں ہیں. تو دو قبیل سے کیا کہتے ہیں سب لوگ داخل ہیں. دو طریقے سے، ایک تو خطاب اگر آپ مانتے ہیں تو موجودین مراد ہیں، لیکن آنے والے دلیل خارجی سے یعنی اجماع کے ذریعے سے داخل ہوں گے. یا یہ کہ خطاب اس لیے کیا ہے کہ موجود لوگوں کو غلبہ دے دیا گیا ہے جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور اس کی مثال موجود ہے کہ کبھی کبھی کسی کو کسی پر غلبہ دے دیا جاتا ہے. کما غلب الذکور علی الاناث فی قولہ اتقوا ربکم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو غلبہ دیا ہے علی الاناث عورتوں پر اپنے قول اتقوا ربکم کے اندر. جس طریقے سے اتقوا ربکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر غلبہ دیا ہے، ویسی وہاں بھی ہے کہ موجودین کو غلبہ دے دیا ہے جو لوگ موجود نہیں ہیں ان پر. اتقوا ربکم، کیوں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے مردوں کو عورتوں پر؟ کیسے پتہ چلا؟ اتقوا ربکم کے اندر مردوں کو عورتوں پر غلبہ دیا ہے، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ جی اتقو جو ہے جمع کا صیغہ مذکر کے لیے ہے. لاختصاص ذالک بجمع المذکر، لاختصاص ذالک بجمع المذکر، اس لیے کہ اتقو جو صیغہ ہے یہ خاص ہے جمع مذکر کے ساتھ، ہے نا. لاختصاص ذالک ہی اشارہ ہے اس کی طرف کہ اتقو جو صیغہ ہے. اسی طریقے سے کم جو ہے نا، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر کے ساتھ. لہذا حالانکہ مراد دونوں ہیں، صرف مرد ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں مراد ہیں اتقوا کے اندر، لیکن مردوں کو عورتوں پر غلبہ دے دیا گیا ہے. اب یہاں سے یا ایھا الناس کی بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نفس جو آیا ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم من الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ والمراد من نفس الواحدہ ہونا آدم. والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم، اے ہوا آدم. نفس واحد سے مراد، ایک نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کس سے پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے. واحدہ کے اندر قرات، واحدہ کے قرات ہیں، فیہا قراتان. واحدہ کے اندر دو قرات ہیں، ایک ہے واحدتن اور ایک ہے واحدن، یعنی من نفس واحدتن اور من نفس واحدن بھی ہے بغیر تا کے، بغیر ہا کے بھی ہے. اعلیٰ مراعات المعنی، بغیر ہا جب ہم واحدن پڑھیں گے تو ایسی صورت میں معنی کا اعتبار کرتے ہوئے واحدن لایا گیا ہے. من نفس واحد، واحد مذکر لایا گیا ہے کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. کیا مطلب ہے معنی کے اعتبار سے؟ علی مراعات المعنی، معنی کی مراد کرتے ہوئے. جی تو کیا ہے معنی کی رعایت یہاں؟ تانیث باعتبار لفظ ہے، تذکیر باعتبار معنی. تذکیر کس اعتبار سے مذکر ہے؟ یہاں پر مراد آدم علیہ السلام کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر ہے نا، وہی اعلیٰ مراعات المعنی، معنی کے اعتبار سے مذکر ہے، لہذا واحد لایا گیا ہے.
फतानीस से बेएतबार लफ्ज, लिहाजा तानीस जो है यानी वाहिदतिन, ये लफ्ज का एतबार करते हुए, क्योंकि नफ्स लफ्जन क्या है, मुअन्नस है, वह तज़कीर बेएतबार माना, और मुज़क्कर जो लाया गया है वाहिदिन, ये माना के एतबार करते हुए, इसलिए कि नफ्स से मुराद आदम अलैहिस्सलाम है। उसके बाद क़ौलुहु व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया व खलक़, वाव आतिफा है, तो ये किस पर आतिफ है? व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, हाँ, क़ीला हुवा मातूफ़ुन अला मुक़द्दरिन यदुल्लु अलैहिल कलाम, कहते हैं कि वह खलका, उसका मातूफ अलैह क्या है, महदूफ है, मुकद्दर है, जिस पर कलाम दलालत करता है, यानी सियाक दलालत करता है, कलाम से मुराद सियाक व सबाक दलालत करता है। असल इबारत क्या है फिर? असल इबारत यूं है, इस तरीके से है, ऐ खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन खलकहा अव्वलन, अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया एक नफ्स से, खलकहा अव्वलन, अल्लाह ताला ने उस नफ्स को पहली मर्तबा पैदा किया है, व खलका मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उस नफ्स से अल्लाह ताला ने उसकी बीवी हव्वा को पैदा किया है। तो मातूफ अला मुक़द्दर, ये बात समझ में आ गई कि मातूफ अला मुक़द्दर कैसे है? असल में खलकहा अव्वलन ये महदूफ है, खलकहा अव्वलन ये महदूफ है, मुक़द्दर है, और खलका अव्वलन पे आतिफ है, वो खलका मिन्हा ज़ौजहा। अब असल इबारत कैसे हो जाएगी, इसको देख सकते हैं आयत में, इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन खलक़हा अव्वलन व खलका मिन्हा ज़ौजहा, ये मुक़द्दर एक कौल है। वकीला, और ये भी कहा गया है कि आला खलक़कुम, इसका जो अत्फ़ है खलक़कुम पे है, मुक़द्दर मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि खलक़कुम पे हम उसका अत्फ़ कर देंगे। माना क्या निकलेगा? नहीं समझ में आया शेख, हाँ? नहीं समझ में आया, पहली वाली तावील वो तावील नहीं समझ में आई। पहले वाली ताबीर समझ में आया, सवाल समझ में आया है? ये सवाल तो समझ में आया है। अच्छा, सवाल समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह जवाब है। वो खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, हाँ, अल्लाह ताला ने अत्फ़ किया है, वाव के जरिए से वो खलक़ लाया है, तो जाहिर बात है ये किसी पर अत्फ़ होगा, तो मातूफ़ अलैह कौन है? ये सवाल है, सवाल है ना? जी 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 सवाल है। क़ील जवाब हुआ मातूफ़ुन अला मुक़द्दरिन, उस जो अत्फ़ है, मुक़द्दर जो जुमला है उस पे अत्फ़ है, वो मातूफ़ उसका अत्फ़ है अला मुक़द्दर, मुक़द्दर जुमले पे जो महदूफ जुमला है उस पर अत्फ़ है। यानी गोया के वह खलक़ मिन्हा ज़ौजहा से पहले कोई जुमला क्या है, महदूफ है। ये यहां तक बात समझ में आई? जी। वह मातूफ़ुन अला मुक़द्दरिन, और वह खलक़ का अत्फ़ किस पर है, किसी महदूफ जुमले, मुक़द्दर जुमला, यानी मुक़द्दर से मुराद क्या है, महदूफ जुमला, यदुल्लु अलैहिल कलाम, जिस पर सियाक़ व सबाक़ दलालत करता है ना। आप देखिए कि असल इबारत महदूफ क्या है, देखिए ऐ खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसके बाद क्या है, खलक़हा अव्वलन, खलक़हा अव्वलन, ये जुमला महदूफ है, खलक़हा अव्वलन, ये देख रहे हैं ना, ये महदूफ है, और इसी महदूफ जुमले पे अत्फ़ है क्या, व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा। तर्जुमा क्या करेंगे, ऐ खलक़कुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से, खलक़ा, उस एक नफ्स को अल्लाह ने पहले पैदा किया, उस एक नफ्स को अल्लाह ने पहले पैदा किया, व खलक़ा मिन्हा, और पूरे उस एक नफ्स से अल्लाह ताला ने उसकी बीवी हव्वा को पैदा किया। मुक़द्दर वाली बात समझ में आई है? जी समझ में आ गई है ना? इसी बोल रहे हैं। आप इबारत देख लीजिए, कुरान की आयत में चलिए, जो मुक़द्दर है कैसे मुक़द्दर है, कुरान की आयत पे नजर, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम
अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन खलक़हा अव्वलन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। मिन नफ्सिन वाहिदतिन के बाद मधु पानेंगे खलक़हा अव्वलन, और उस खलक़ा अव्वलन पे अत्फ़ करेंगे वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा। बात वाज़ेह है? जी शेख। वाज़ेह हो तो बताइएगा। अच्छा, दूसरा जवाब कि इसका अर्थ अब मधु मानने की जरूरत नहीं है, वकील अला खलक़कुम, और ये भी कहा गया है कि ये खलक़कुम पे अत्फ़ है। यहाँ जो अल्लज़ी खलक़कुम, इसी खलक़कुम पे क्या है, वह खलक़ मिनहा ज़ौजहा का अत्फ़ है। ये जवाब वाज़ेह है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। जी, दूसरा जो जवाब है वकील अला खलक़कुम, कि वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा का अत्फ़ किस पे है, खलक़कुम पर है। इसमें कोई इश्काल है? जी नहीं शेख। अब देखिए, वकील अला खलक़कुम कल माना क्या निकलेगा, व खलक़ मिन तिलका नफ्स अल्लती हिय इबारतुन अन आदमा ज़ौजहा, कि अल्लाह ने पैदा किया उस एक नफ्स से जो कि इबारत है आदम से। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है ना, व खलक़ मिन तिलका नफ्स, अल्लाह ने पैदा किया उस नफ्स से, अल्लती हिय इबारतुन, जो कि इबारत है आदम से। यानी अल्लाह ताला ने उस नफ्स से, जिससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, उससे उसकी बीवी को पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया उस नफ्स से जिससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, उससे उसकी बीवी को पैदा किया। वही हव्वा, और उसकी बीवी का नाम क्या है, हव्वा है, वही हव्वा। आगे साहिब तफसीर कहते हैं, वक़द तक़द्दमा फिल बक़रति माना तक़वा व रब्बे व ज़ौज वल बस्से। साहिब किताब कहते हैं कि सूरह बकरा के अंदर तक़वा का माना गुजर चुका है, रब का माना गुजर चुका है, ज़ौज का माना गुजर चुका है, और बस का माना गुजर चुका है। बस जो आया है, यानी 4 लफ्ज़ हैं, तक़वा, रब, ज़ौज और बस। साहिब किताब ने यहाँ उसका यादा नहीं किया है, ये इशारा किया कि सूरह बकरा के अंदर इसका माना गुजर चुका है। अब आइए थोड़ा सा हम तक़वा और क्या कहते हैं, ज़ौज और रब और बस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका माना हकीकत में है क्या। आप क्या कहते हैं, तक़वा जो 1 नंबर हाशिया है या अय्युहन नास पे, वहां आप हाशिया पे नजर रख सकते हैं, वहीं से बताएंगे अभी। तक़वा का लफ्ज़ी माना जो होता है खशिया वल खौफ पे होता है। खशिया का लफ्ज़ी माना अल खशियत वल खौफ है ना, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के जो फरमुदात है, अल्लाह ने जो फरमाया है उसको बजा लाना है, और जो मनहियात हैं उससे रुक जाना है। उसमें मैंने लिखा है हकीकत अल अमल बिताअतिल्लाह, कि तक़वा की हकीकत यह है कि अल्लाह की इताअत के मुताबिक अमल करना, ईमानन और इत्तिसाब की हालत में, है ना। ये माखूद होता है मिनल विकायत, विकायत से माखूद है। वही अन यत्तखिज़ल इंसान विकायतन मिन अज़ाबिल्लाह, और विकायत क्या चीज है, वो एक ढाल है जो इंसान बनाता है अल्लाह के अज़ाब के लिए। कैसे बनाता है? बेफिल अवामिरी, अल्लाह के जो फरमात है, जो अवामिर है उसको बजा ला करके, वह इज्तिनाब नवाही, और अल्लाह के जो मनियात, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे रुक करके ये तक़वा एक ढाल बनाता है जो उस आदमी के दरमियान और अल्लाह के अज़ाब के दरमियान हाइल होता है। यानी उस ढाल की वजह से अल्लाह का अज़ाब उस बंदे तक नहीं पहुंच पाएगा। ये क्या है? तक़वा की हकीकत है। बाकी कुछ लोगों ने तारीफ भी की है, और एक तारीफ में बहुत जिक्र करता हूँ, अल्लामा इब्न तैमिया की तारीफ बहुत मशहूर तारीफ है। आप वहाँ से हम देख सकते हैं कि वअर्रफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हिय अन तजअला बैनका व बैन अज़ाबिल्लाहि विकायतन बिइम्तिसाल अवामिरिही व इज्तिनाब नवाहिही। अन तजअला, कि तक़वा ये है कि आप इसे बनाएं, मुक़र्रर करें, बैनका, आपके दरमियान, व बैन अज़ाबिल्लाहि, और अल्लाह के अज़ाब के दरमियान एक ढाल बनाएं, विकायतन एक ढाल बनाएं। वो ढाल कैसे बनाएंगे आप?
बिइम्तिसाल अवामिरिही, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उसे बजा ला करके, वह इज्तिनाब नवाहिही, और उसके मनहियात यानी जिन कामों से मना किया उससे रुक करके आप वो ढाल बनाएंगे, और वो ढाल आपके दरमियान और अल्लाह के अदाब के दरमियान होगा। आप तक अल्लाह का अदाब नहीं पहुंचेगा अगर आपके अंदर तकवा है। यह है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की तारीफ। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तकवा हियल खौफ मिनल जलील, हियल खौफ मिनल जलील, जलील से मुराद अल्लाह ताला है, तकवा नाम है अल्लाह से डरने का, वल अमल बित्तंजील, और कुरान पर अमल करने का नाम है तकवा। तंजील से मुराद कुरान है, जो नाज़िल शुदा है उस पर अमल करने का नाम तकवा है। वल क़नाअत बिल कलील, और थोड़ी चीज पर कनात करने का नाम तकवा है। वल इस्तिदाद लियौम रहील, और यौम रहील के लिए तैयारी करना, ये तकवा है। अल्लाह से करें, कुरान पर अमल करें, थोड़ी चीज पर कनात करें, और क़यामत के लिए, यौम आखिरत के लिए तैयारी करें। ये तकवा का मुख्तसर माना है। रब का माना भी आता है, जो जिक्र किया साहिब किताब में सूरह बकरा के अंदर। रब का माना खालिक क्या आता है, मालिक क्या आता है, मुदब्बिर क्या आता है, सैयद क्या आता है, मुतसर्रिफ क्या आता है। इतने माने सूरह बकरा में साहिब किताब ने ये माने जिक्र किया है। रब का माना खालिक, मालिक, मुदब्बिर, सैयद और मुतसर्रिफ। तो ये तकवा और रब का माना हो गया। आप ज़ौज का माना देख सकते हैं, ज़ौज युतलक वाला रिजाल वल मरा, जो लफ्ज़ ज़ौज है ये मियाँ बीवी दोनों पर इतलाक होता है इसका। बीवी पर, बीवी के लिए भी ज़ौज बोलते हैं, शौहर के लिए भी ज़ौज बोलते हैं, जबकि बसा औकात बीवी के लिए ज़ौजा ता के साथ बोलते हैं। लेकिन लुग़वीन कहते हैं ये गैर फसी है। लुग़वीन क्या कहते हैं, गैर फसी है। कुरान में अक्सर जगहों में ज़ौज औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ ज़ौज कुरान के अंदर औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ ज़ौज शौहर के लिए सिर्फ 2 जगह में इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ ज़ौज जो है मर्द के लिए, शौहर के लिए 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, बाकी जगहों में ज़ौज का लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरे ख्याल से 2 जगह, मैंने बहुत कुछ तलाश किया, 2 के अलावा कहीं और लफ्ज़ नहीं मिला मुझे। अगर तीसरी जगह आपको मिल जाए तो बताइएगा। वो 2 जगह कहाँ है मैं बता देता हूँ कि ज़ौज से मुराद शौहर है। सूरह मुजादला की आयत पढ़िए, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. यहाँ ज़ौज से मुराद शौहर है, तो उसका शौहर मुराद है। और एक जगह ज़ौज से मुराद शौहर है, हत्ता तनकिहा زوجا غيره, ज़ौजन गैरा, यहाँ बीवी मुराद नहीं है, ज़ौज मुराद शौहर मुराद है। इसके अलावा और जो ज़ौज इस्तेमाल हुआ है आप देख लीजिए, उस्कुर अंत व ज़ौजुक, इस तरह की जितनी भी आयतें हैं वहाँ बीवी मुराद है। वो अस्लहु ज़िद्दुल वित्र, ज़ौज का जो ज़िद है वो वित्र है। लेकिन ज़ौज का माना क्या होता है, अश्शफ़उ, ज़ौज का माना अश्शफ़उ, ये वित्र की ज़िद है। क्यों शफ़ा बोलते हैं, इसलिए कि लिअन्ना ज़ौजता इज़ा इंज़म्मत इला ज़ौजिहा सारत शफ़अन लहु, इसलिए कि जब बीवी शौहर के साथ मिल जाती है तो क्या होगा, 2 हो जाएंगे ना। बाद अन कान मुनफरिदन, जबकि वो पहले शौहर बेचारा तन्हा था, लेकिन जब मिल गए तो 2 हो गए। वो लिहाजा युकाल, इसलिए कहा जाता है अज़ौजतु शरीकत ज़ौजिहा फिल हयात, बीवी जो है शौहर के शरीक हयात है। लिअन्न बअदा इंज़म्मा इला बअद अल मुराद हव्वा अलैहिस्सलाम, लेकिन यहाँ ज़ौज का जो लफ्ज़ बोला गया है, यहाँ ज़ौज से मुराद कौन है, आदम की बीवी हव्वा है। हाँ, एक लोग माना, लेकिन यहाँ मुराद कौन है, मुराद याद रखिएगा, मुराद अलग चीज है, लोग माना अलग चीज है। तो यहाँ ज़ौज से मुराद आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा है, लेकिन उसके लोग माने कुछ और हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ की तरह इशारा किया, बस। बस का माना क्या आता है, बस के माना नशरा के, हाँ, फैलाना। बस का माना नशरा, फैलाना। अय व अखरज मिनहा मिन नफ्स ज़ौजहा, हाँ, बस का माना नशरा के होता है, फैलाने के होता है। और ये और जगह पे इस्तेमाल हुआ है सूरतुल गाशिया में, सूरतुल गाशिया के अंदर इस्तेमाल हुआ है। कैसी आयत है वो, वज़राबियो
مبثوثا مبسوسا اسے بستے ہیں، مبسوس اے منشورا، مبسوسا اے منشورا. تو گویا کہ نشر کا معنی پھیلانے کی، بس کا معنی پھیلانے کیا ہے، نشر کیا ہے، نکالنے کیا ہے، دنیا میں پھیلا دینا ہے. یہ چار لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہو گیا، تقوی کا معنی، رب کا معنی، زوج کا معنی، بس کا معنی. صرف 2-3 منٹ بچا ہے تو انشاءاللہ اسے پھر ہم کر لیتے ہیں. وہ ضمیر فی قولہ منہا ومنہما میں یہاں سے لے کر کے کل انشاءاللہ